Good morning, students. Today we read this lesson, class ninth. Name of the lesson is The Fun They Had. In this lesson, we read about the changes of the education field. What will be a change after a century? Students read with telecom on telebooks and computers, internet, software packages, and human teacher replaced by a mechanical teachers. This is the lesson. So we let's begin this lesson. Margie even wrote about it that night in her diary on the page headed 17 May 2157. She wrote, today Tommy found a real book. मार्जी ने अपनी एक डायरी में एंट्री करी है और डेट भी लिखा है और उसमें ये बताया है कि टुडे आज टॉमी को एक रियल बुक मिली है. It was very old book. Margie's grandfather once said that when he was little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. They turned the pages which were yellow and crinkly. It was awful funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, and then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time. जब मार्जी और टॉमी ने वो पुरानी सी बुक देखी तो उसके जो पेजेस हैं बहुत येलो और क्रिंकली हो रहे थे. मीन्स बहुत पुराने और उसमें मुड़े हुए पेजेस थे. उन्हें ये देखकर बहुत आश्चर्य हो रहा था कि जो वर्ड्स हैं वो एक ही प्लेस पर फिक्स हुए हैं, कोई भी मूवमेंट उन पे नहीं हो रहा है. क्योंकि वो बच्चे मार्जी और टॉमी जो हैं वो कंप्यूटर स्क्रीन पे पढ़ा करते थे जहाँ वर्ड्स मूवमेंट होते थे, इसीलिए उन्हें बहुत सरप्राइज़ हुआ था. Gee, said Tommy, what a waste. When you are through with the book, you just throw it away. I guess our television screen must have had a million book on it, and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. Some with mine, said Margie. She was 11 and hadn't seen as many telebook as Tommy had. He was 13. Tommy की जो एज है वो 13 ईयर ओल्ड था और मार्जी 11 ईयर ओल्ड थी. In my house, he pointed without looking because he was busy reading in the attic. What is about school? Margie was scornful. मार्जी को स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं था. वॉट देयर टू राइट अबाउट स्कूल? आई हेट स्कूल. कि स्कूल के बारे में लिखने की क्या ज़रूरत है, मुझे स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं है. मर्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर. पर अब उसे और भी ज़्यादा ये स्कूल बुरा लग रहा था. जो वो अपने घर में अपने क्लासरूम में एक रूम में जो इस मैकेनिकल टीचर के द्वारा कंप्यूटर पे पढ़ती थी, तो वो स्कूल उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था. And especially mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. और स्पेशली मार्जी को वो स्कूल तब और ज़्यादा बुरा लगता था जब मैकेनिकल टीचर उसका ज्योग्राफी का टेस्ट लेते थे और वो हमेशा हर बार बहुत बुरा रिज़ल्ट दिया करती थी. उसकी परफॉर्मेंस ज्योग्राफी के टेस्ट में बहुत ख़राब थी. तो उसकी मदर को बहुत वरिड हो जाती है उसकी मदर, और पता लगाने के लिए काउंटी इंस्पेक्टर को अपने घर में बुलाती है. He was round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. He smiled at Margie and gave her an apple. Then took the teacher apart. Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again, but he knew how all right. And after an hour or so, here it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. That wasn't so bad. The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. और सबसे जो बुरी बात मार्जी को लगती थी कि उसमें एक स्लॉट हुआ करता था. जब मैकेनिकल टीचर कंप्यूटर पे उन्हें पढ़ाते थे तो स्लॉट में बच्चों को होमवर्क पुट करना पड़ता था और टेस्ट पेपर्स पुट करने पड़ते थे.
She always had to write them out in a punch code. They made her learn when she was 6 year old. जब वो 6 साल की थी तभी से उसको ये सब प्रोसीजर कंप्यूटर पे करने होते थे. द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन ओन नो टाइम. और बहुत जल्दी ही वो जो मैकेनिकल टीचर था जो उसे पढ़ाता था कंप्यूटर पे, वो विद इन अ मिनट मार्क्स कैलकुलेट करके उसका रिजल्ट भी बता देता था. तो ये चीज़ और भी बुरी थी. The inspector had smiled after he has finished and petted Margie's head. He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mrs. John. I think the geography sector was geared a little too quick." काउंटी इंस्पेक्टर ने कहा कि इसमें इस बच्चे की कोई गलती नहीं है. जो जोग्राफी सेक्टर है वो उसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो गई थी. अब मैंने स्पीड उसकी कम कर दी है अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ 10 ईयर लेवल. जो 10 ईयर के बच्चों की जो एवरेज कैपेबिलिटी होती है उसके अकॉर्डिंग जोग्राफी सेक्टर की स्पीड सेट कर दी गई है. तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड. शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे टुगेदर. दे हैड वंस टेकन Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. मार्जी बहुत डिसअपॉइंट हो जाती है, निराश हो जाती है. उसे ये उम्मीद थी कि उसके जो ये जोग्राफ़ी टीचर है उन्हें यहाँ से ले जाया जाए, क्योंकि जब टॉमी के को एक बार हिस्ट्री टीचर में सेक्टर में प्रॉब्लम आ गई थी तो 1 महीने के लिए उसे लेके चले गए थे काउंटी इंस्पेक्टर. सो शी सेड टू टॉमी, "वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल?" टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज. "बिकॉज इट्स नॉट अवर काइंड ऑफ अ स्कूल, स्टूपिड. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago," he added loftily, pronouncing the word carefully. "Century ago?" Margie was hurt. "Well, I don't know what kind of school they had all that time ago." She read the book over his shoulder for a while, then said, "Anyway, they had a teacher." जब टॉमी और मार्जी पुराने स्कूलों की बात करते हैं जिसमें हम अभी पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, देख रहे हैं, इस तरह के स्कूलों की बात करते हैं. सोचिए, आफ्टर अ सेंचुरी जब इस तरह के स्कूल बिल्कुल डिसअपेयर हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, बच्चे किस तरह से ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ेंगे और उन्हें क्या उन क्लासेस में इंटरेस्ट आएगा. ऐसी ही एक स्टोरी है मार्जी की. Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher, it was a man. टॉमी मार्जी को बताता है कि हाँ, पहले के टाइम में टीचर हुआ करते थे. अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? मार्जी को बहुत सरप्राइज़ होता है कि अरे, एक इंसान टीचर कैसे हो सकता है, क्योंकि वो जो पढ़ती है कंप्यूटर पे तो मैकेनिकल टीचर्स उसे पढ़ाते हैं, इसीलिए वो बहुत सरप्राइज्ड है. Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. A man isn't smart enough? Sure, he is. My father knows as much as my teacher. He knows almost as much I betcha. Betcha means very promising, means pakka. Margie wasn't prepared to dispute that. मार्जी इसमें कोई बहस आर्ग्यूमेंट्स नहीं करना चाहती थी. शी सेड, "आई वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माय हाउस टू टीच मी." टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर. मार्जी जब बोलती कि नहीं, कोई भी स्ट्रेंजर मुझे अपने घर में नहीं चाहिए, तो टॉमी उसकी बात सुनकर बहुत हंसता है. "यू डोंट नो मच, तुम्हें कुछ ज़्यादा मालूम नहीं है मार्जी. द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर." कि पहले के टाइम में टीचर घर में नहीं पढ़ाते थे, एक स्कूल बिल्डिंग हुआ करती थी और सभी बच्चे वहाँ जाते थे. And all the kids learned the same thing, sure, if they were the same age. But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently. पर जो मार्जी है बोलती है कि मेरी मदर बोलती हैं कि जो टीचर हैं वो हर बच्चों को अलग अलग डिफरेंट लेवल से पढ़ाते हैं, क्योंकि सभी बच्चे डिफरेंट कैपेबिलिटी होती है उनकी. They are not same, just the same they didn't do it
that way, then if you don't like it, you don't have to read the book. I didn't say I didn't like it, Margie said quickly. She wanted to read about those funny school. Margie इन जो पुराने स्कूल्स थे उनके बारे में बहुत कुछ जानना चाहती थी, पढ़ना चाहती थी. They weren't even half finished when Margie's mother called, Margie, school. Margie looked up. Not yet, Mama. Now, said Mrs. Jones, and it's probably time for Tommy too. Margie said to Tommy, Can I read the book some more with you after school? जब दो टॉमी और मार्जी दोनों स्कूल के बारे में बात कर रहे होते हैं तो उसकी मदर, मार्जी की मदर बुला लेती है. इट्स टाइम फॉर स्टडी, कि ये तुम्हारे पढ़ने का टाइम हो रहा है. Maybe, he said nonchalantly. He walked away whistling, the dusty old book tucked beneath his arm. Margie went into the schoolroom. It was right next to her bedroom, and the mechanical teacher was on and waiting for her. It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday. मर्जी अपने स्कूल रूम में चली जाती है जो उसके बेडरूम के नेक्स्ट बगल में ही था, और टॉमी भी वो बुक अपने पास रखकर वहाँ से चला जाता है. Because her mother said little girls learned better if they learned at regular hours. The screen was light up and it said, Today's arithmetic lesson is on the addition of proper fraction. प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट. जब वो स्टडी के लिए बैठती है कंप्यूटर स्क्रीन के सामने तो उस स्लॉट में जो जगह होती है कंप्यूटर में उसे अपना होमवर्क पुट करना होता है. तो अभी वो मैथ्स अर्थमेटिक लेसन पढ़ रही है. मार्जी डिड सो विद अ साई. बहुत निराश हो जाती है वो और पढ़ने की कोशिश करती है. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल. अभी भी वो पुराने स्कूल के बारे में ही सोच रही होती है. व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय. जब उसके ग्रैंडफादर इन स्कूल में पढ़ते थे. All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting the schoolyard, sitting together in the schoolroom, giving him together. At the end of the day, they learned the same thing so they could help one another with the homework and talk about it. तो वो पुराने स्कूल के बारे में सोच रही, इमेजिन कर रही होती है कि जो बच्चे हैं एक साथ आस पड़ोस के एक साथ स्कूल जा रहे हैं और बहुत फ़न, बहुत मज़े आ रहे हैं उनको. दे वर टेकिंग सो इंटरेस्ट. इट वॉज सो फनी. It appears so excited and interesting for Margie because she hates her school, living and studying alone at the room. Okay.